بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ دل، بیدار مغز، چاقو چبند اور ایسا جرأت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز نہ کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دل دادا بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی مغنیہ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے سوئے یثرب روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتا تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا ماحول مہیا کرے۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے اس کے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ خاص طور پر بنو قریظہ سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم بن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ دین جدید سے اس لیے پہلو تہی اختیار کی کہ یہ میرے عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا، اور اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اس کی بھیک کی نہیں کر سکے۔ لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور ورتائے حیرت پڑ گئے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا سا پس منظر میں جھانکنا پڑے گا۔ غزوہ احزاب سے چند روز پہلے یثرب کے یہودی بنو نذیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرت آزما ہونے کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ یکبارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے زمائے یہود مکہ میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے پختہ عہد کیا کہ جو ہی تمہاری فوجیں مدینہ کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زمائے یہود کو یہ وفود نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بی کنی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پا جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بلاخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے کیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے تمطراق سے مکہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادہ بھی، قابل ذکر کوئی قریشی بھی مکہ نہ رہا۔ اس طرح بنو غطفان میں اپنے سپہ سالار رینا بن حرس غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم بن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورے کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا۔ سوچ بچار کے بعد یہ بات طے پائی کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہوئی۔ مکہ اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جو ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلے بنو نذیر کے زماں مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی میں بھرپور شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زماں نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ طے پا چکا ہے، ہم مدینہ میں امن و آشتی سے رہیں گے، اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے
तो इनकी हम पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और हमें मादा तोड़ने की जुर्म में तहस नहस करके रख देंगे। लेकिन बनु नज़ीर के ज़मा इन्हें मुसलसल मादा तोड़ने के लिए उकसाते रहे और इस सिलसिले में इन्हें सब्ज बाग दिखलाते रहे और इन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा, इस दफ़ा मुसलमान अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और ये भी बताया कि हमारी मदद के लिए 2 बड़े लश्कर बस पहुंचा ही चाहते हैं। बिलाखिर बनु करीज़ा ने बनु नज़ीर की चिकनी चपड़ी बातों से मुतासिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ मादा तोड़ दिया और तहरीरी दस्तावेज को फाड़ डाला और मुसलमानों के खिलाफ ग़ज़वा-ए अहज़ाब में शमूलियत का ऐलान कर दिया और ये खबर मुसलमानों पर बिजली बनकर गिरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अब वो दोनों जानिब से दुश्मन के नरके में हैं। कुरैश और बनु गतफान हमारे मुकाबले के लिए बाहर से आ रहे हैं और बनु करीज़ा मदीना मुनव्वरा के अंदर से हमारे मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं। इनके अलावा वो लोग जिनके दिलों में नफाक का मर्ज था कहने लगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हमसे वादा था कि हम कसरा और कैसर के मालिक बन जाएंगे और आज हमारी ये हालत है कि हम में से कोई बेखौफ बैतुल खला तक भी नहीं जा सकता। फिर यके बाद दिगरे मुसलमानों से अलहदा होने लगे। इन्हें ये अंदेशा था कि दाखिली मुहाज से बनु करीज़ा के हमला आवर होने की बिना पर हमारी औरतें, बच्चे और घर महफूज नहीं रहेंगे। अब सूरत हाल ये हो गई कि चंद सैकड़े वही मुसलमान आपके साथ रह गए जो पुख्ता ईमान के हामिल थे। दुश्मन की जानिब से मुहासरे को तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे। अंदरूनी और बैरूनी एतबार से हालात नागुफ्ता बा सूरत हाल अख्तियार कर चुके थे। इस नाजुक तरीन और अंदूकनाक सूरत हाल को देखकर एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बुल आलमीन में गिड़गिड़ाते हुए बार बार ये फरमाने लगे, इलाही अपने वादे के मुताबिक हमारी मदद फरमा, इलाही अपने वादे के मुताबिक हमारी मदद फरमा। इधर आप फरमा रहे थे कि इधर नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर पर लेटे बड़ी बेचैनी के साथ करवटें ले रहे थे। बेताबी और इस्तराब की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपनी निगाह को साफ़ो शफाफ आसमान पर जगमगाते तारों में दौड़ा रहे थे और गहरी सोच में पड़े हुए थे। फिर अपने दिल से महवे गुफ्तगू हुए और कहने लगे, नईम तुझ पर अफसोस, नजद जैसे दूर दराज इलाके से बरगजीदा लोग शख्स और इसके साथियों से तुम क्यों लड़ने आए हो? तुम किसी छने हुए हक को हासिल करने या पामाल शुदा इज्जत को बहाल करने के लिए तो इनसे नहीं लड़ रहे, तुम्हें बगैर किसी वजह से लड़ने आए हो। क्या तुझे जैसे दानिशवर शख्स के लिए मुनासिब है कि बिला वजह किसी को मारे या खुद मरे? नईम तुझ पर सद अफसोस, भला तुझे क्या चीज़ तंग कर रही है? तुम एक ऐसे बरगजीदा शख्स के मुकाबले में आओ जो अपने मानने वालों को अदलो इंसाफ और सदका खैरात का हुक्म देता है। भला तुझे क्या चीज़ तंग करती है? तुम अपना नेज़ा इसके इन साथियों के खून में रंगो जिन्होंने इस रश्द व हिदायत के पैगाम की पैरवी की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास लेकर आए। जनाब नईम के दिल में ये ख्यालात और अफकार गर्दिश कर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक इनकलाबी इक़दाम करने का तारीखी फ़ैसला कर लिया और सोचा कि इस फैसले को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया जाए। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तारीकी में अपनी छावनी से निकले और तेज़ तेज़ चलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने सामने तस्लीम और रज़ा और अदब व एहतराम की तस्वीर बने खड़े हुए देखा तो इरशाद फरमाया, क्या तुम नईम बिन मसूद हो? अर्ज़ की, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, इस वक्त यहाँ कैसे आए हो? अर्ज़ किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि ये गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूदे हकीकी नहीं और आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं और जो भी पैगाम आप लेकर आए वो बरहक है। फिर इसके बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरे मुसलमान होने का मेरी कौम को अभी इल्म नहीं हुआ। अब जो भी मुझे आप हुक्म देंगे मैं बरज़ा और रग़बत इसे बजा लाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम वापिस अपनी कौम में जाओ और कोई ऐसी चाल चलो जिससे दुश्मन के मौजूदा मुहासरे में इज़्मलाल पैदा हो और वह पसपा होने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि लड़ाई में धोखाधड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। अर्ज़ की, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद, मैं दुश्मन के खिलाफ ऐसी चाल चलूँगा कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फौरी तौर पर बनु करीजा के पास पहुंचे। वो पहले इनके हम प्याला और हम नवाला थे। इनसे कहा, ए बनु करीजा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए किस कदर खैरख्वाही के जज्बात रखता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, आप हमारे जिगरी दोस्त हैं। इसने कहा, इस लड़ाई में कुरैश और बनु गतफान की हैसियत तुमसे मुख्तलिफ है। उन्होंने पूछा, वो कैसे? इसने कहा, ये तुम्हारा शहर है, इसमें तुम्हारा माल, औलाद और औरतें हैं। तुम इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये कुरैश और बनु गतफान का शहर नहीं, इनके माल, औलाद, औरतें किसी दूसरे शहर में हैं। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से लड़ाई करने आए हैं। उन्होंने तुम्हें मुसलमानों के साथ मादा तोड़ने और अपनी मदद के लिए तुम्हें पुकारा, तो तुमने इनकी बात को तस्लीम कर लिया। अगर वो इस लड़ाई में कामयाब हो गए तो इसे गनीमत समझेंगे और जी भर कर माले गनीमत समेट कर ले जाएंगे। अगर लड़ाई में नाकाम हो गए तो अपने घरों को वापस लौट जाएंगे और तुम्हें यहाँ मुसलमानों का निशाना बनना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि इस सूरत हाल में तुम कुछ ना कर सकोगे। उन्होंने कहा, तुम सच कहते हो, हम क्या करेंगे, तुम्हारी क्या राय है? इसने कहा, मेरी मुखलिसाना राय ये है कि तुम इस शर्त पर इस लड़ाई में इनका साथ दो कि वो अपने चंद मौजूद अफराद तुम्हारे पास बतौर गिरवी रखें। इस तरह वो तुम्हारे शाना बशाना मुसलमानों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। या वो कामयाब होंगे या इस मैदान में वो फना हो जाएंगे। उन्होंने कहा, आपने बड़े पते की बात की है। आज आपने दोस्ती और खैरख्वाही का हक अदा कर दिया। फिर वो इनके पास से उठे और सीधे कुरैश के सरदार अबू सुफियान बिन हरब के पास गए और इनसे कहा, ए खानदान कुरैश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दावत है। मुझे आज एक बात का पता चला है, मैं तुम्हें फौरन बताने चला आया। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि इसे छुपाए रखना और मेरे हवाले से किसी को ना बताना। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारा आपसे वादा रहा, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसने कहा, बनु करीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़े पर बड़े ही नादम हुए हैं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये पैगाम भेजा है कि हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ किया जाए। हम दोबारा आपके साथ अमन और आश्ती के साथ रहने का वादा करना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो कुरैश और बनु गतफान के बेशतर मरूफ अफराद आपके सपुर्द करने का एहतमाम कर देंगे। चाहें तो आप इनकी गर्दनें उड़ा दें, फिर हम आपके शाना बशाना इनके खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ तक कि आप इनका काम तमाम कर सकें। फिर इसने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए इरशाद फरमाया, अगर यहूदी तुम्हारे अफराद अपने पास गिरवी रखने का मुतालबा करें तो कोई अपना फर्ज इनके सपुर्द ना करना। अबू सुफियान ने ये बातें सुनकर कहा, तुम हमारे बेहतरीन दोस्त और गवाह हो, आपको जज़ाए खैर नसीब हो। फिर नईम अबू सुफियान के पास से उठे और सीधे अपनी कौम बनु गतफान के पास पहुंचे और इनसे वही बातें की जो बनु सुफियान से की थी और इन्हें भी सूरत हाल से आगाह करते हुए इसी तरह डराया जिस तरह अबू सुफियान को अंदरूनी खतरों से खौफजदा किया था। अबू सुफियान ने बनु करीजा का इम्तिहान लेने के लिए अपने बेटों को इनके पास भेजा। बेटे ने बनु करीजा से कहा, अब्बा जान आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का मुहासरा बहुत तवील अख्तियार कर गया है, बहुत तौल अख्तियार कर गया है, जिससे वो हम अक्ता गए हैं। हमने अब फैसला किया है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों से फैसला कुन जंग करेंगे। अब्बा जान ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम्हें इस जंग में शिरकत की दावत दूं। कल आपको मुकाबले में शरीक होने के लिए वहां आना होगा। ये बात सुनकर उन्होंने कहा, कल तो हफ्ता होगा, ये हमारा मुबारक दिन है, इस दिन हम कोई काम नहीं करते। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे जब तक तुम अपने और कबीला गतफान के 70 मौजूद अफराद हमारे पास गिरवी नहीं रखोगे। हमें खतरा ये है कि जब लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर जाएगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे और हमें बेयारो मददगार मुसलमानों का तख्ता मशक बनने के लिए छोड़ जाओगे। तुम जानते हो कि हम ये सिकत नहीं रखते कि अकेले इनका मुकाबला कर सके। जब अबू सुफियान का बेटा अपनी कौम के पास वापस आया, इन्हें वो सब कुछ बताया जो बनु करीजा से सुना था, तो सब ने बैक ज़बान कहा, तुफ बंदरों और खंजीरों की औलादों ने बड़ी कमीनगी का मुजाहिरा किया। बाखुदा अगर वो हमसे गिरवी रखने के लिए एक बकरी का मुतालबा करें तो वो भी हम इनके सपुर्द नहीं करेंगे। इसी तरह नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन की सफ़ों में फूट डालने में कामयाब हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरैश और इनके हमनमा कबाइल पर ऐसी तेज़ आंधी चलाई जिसके इनके खेमे उखड़ गए।
खाने के बर्तन उलट गए, खाने के चूल्हे बुझ गए, चेहरे खाक आलूद हो गए, आंखें गुबार से अट गई। दुम दबाकर भाग जाने के अलावा इनके लिए कोई चारा बाकी ना रहा। जब मुसलमानों ने दुश्मनाने खुदा को पीठ फेर कर भागते हुए देखा तो नारे तकबीर बुलंद किया और अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने बंदे की मदद की, अपने लश्कर को इज्जत और सरफराजी नसीब फरमाई और दुश्मन के लश्कर को शिकस्त फाशे दो चार कर दिया। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद हज़रत नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इंतहाई काबिल एतमाद हैसियत अख्तियार कर गए। इन्हें बहुत से फ़राइज़ सौंपे गए और कई मौके पर लश्कर इस्लाम का झंडा इनके हाथ थमाया गया। फतह मक्का के दिन अबू सुफियान बिन हरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर इस्लाम को बगौर देख रहे थे। उन्होंने एक शख्स को कबीला गतफान का झंडा उठाए हुए देखा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास खड़े हुए शख्स से पूछा, ये कौन है जिसके हाथ में झंडा है? इसने बताया, ये नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसने कहा, ग़ज़वा खंदक में इसने हमारे साथ ऐसा दाव खेला कि जिससे हम चकरा गए। बाखुदा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था और आज झंडा हाथ में लिए अपनी कौम की क़यादत करते हुए लश्कर इस्लाम में शामिल है और हमसे लड़ाई करने आ रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन